guys and for you guys with a very amazing video which is going to be very helpful for you guys. But guys, before the video, don't forget to do LS square, which means like, share and subscribe. So go fast and hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon, because if you did so, you will not be notified about the channel or any updates, right? So do it fast. And guys, you can also stay connected with me. You can clear your doubts on Facebook, as we have a Facebook page. On Instagram, you can DM me on our Instagram page, and you can also DM me on Twitter page. And guys, if you have any doubts, you can also message me on WhatsApp. My WhatsApp number is visible to you on the screens. And guys, also you can ask your doubts in the comment section. I'll definitely reply to it. Now guys, coming on to the video, this is a request. Somebody requested me to make a video on introduction to trigonometry. So I did so because this is for your help only. ये channel मैंने आपकी help के लिए ही बनाया है. So I need to do my work. So the video is based on trigonometry, introduction to trigonometry, and we are going. And this chapter is for actually class 10th, but the people who are in class 12th or class 11th can also watch this, because it is actually the basis of the trigo, and it is necessary for you even in your 11th and 12th trigo also. Alright, so we'll be discussing all the formulae and the necessary points that you know about the trigono, and also I'll discuss some questions that will give you an idea regarding that. So let's just dive into the video. So guys, first of all, we need to understand what is trigonometry. Guys, trigonometry is actually everything related to triangles, right? I hope you know what is triangle. This is very simple thing. So everything in trigonometry is related to triangles and the angles of triangles especially, right? So we have various T ratios, means trigonometric ratios. Trigonometric ratios. And what are these ratios? These ratios are actually the ratios of the different sides of a triangle, right? Different sides of a triangle which are actually related to one angle of that triangle, right? So we have different, suppose this, I am taking an angle of a triangle to be A, right? Suppose this is a triangle and this angle is called A. I am naming this angle to be A. So the T ratios that we have is sine A, right? Then we have cos A, then tan A, which is also known as tangent A, then we have cosine A, right? Cosine A, जिसको हम बोलते हैं cosecant A, then we have secant A, then we have cot A, which is called cotangent A. ठीक है? Sin A, cos A, tan A, cosecant A, secant A, cot A. These are the basic ones. These are the main ratios that you need to remember, that you need to memorize, right? So these are basic ratios. And guys, if I talk about a triangle, especially these, जो ये trigonometry में जो triangles that we are talking about, they are right angles, right? In trigonometry, mostly the triangles are right angles. So I am taking this. Mostly नहीं, मतलब actually में it is all related to right angled triangle. Trigonometry is related to right angled triangle. What is right angled triangle? The triangle having one angle equals to 90 degree is called the right angled triangle. So if I say this is my angle A, right? Being this to be right angle, this is the base, this is hypotenuse, and this is perpendicular, right? So I'll be denoting these sides by P, B and H, right? So if we talk about sine A, we have to calculate the sine of A, and by using, not by using any formulae or some angle values that you need to be remembered, that is not the use here. I am just telling you how to use the sides of a triangle, of a right angle triangle, to find the value of an angle, to find the T ratio of an angle, right? So for example, if I have to find the sine A and I have this triangle, now for sine A, the values are perpendicular
by hypotenuse. If I have the value of perpendicular, for example, it is 5 centimeters and this is 4 centimeters. So my sine A will be 5 by 4. So this is actually the way to calculate the sine of A with the help of the sides of triangle. I hope you are getting my point. If we talk about the cos A, then we have base upon hypotenuse, right? Base upon hypotenuse. Then in case of tan A, this is perpendicular upon base. Then these are the 3 T ratios you actually need to memorize, because these 3 are just opposite of the above 3, right? Sine is the opposite of cos, means it's the inverse of cos, not opposite, it is inverse of cos. If sine is inverse of cosecant, cosecant. So sine A is P by H, means perpendicular by hypotenuse, then cosecant A will be hypotenuse by perpendicular. Right? It's just the opposite, the inverse. Similarly, secant A is the inverse of cos A. If cos A is base by hypotenuse, then this will be hypotenuse by base. And coming on to cot A, means cotangent A, it is the inverse of tangent A. So if it is perpendicular by base, then this will be base by perpendicular. I hope it's clear. Yes? So these are actually just the simple trigonometric ratios and their relation with the sides of the triangle, right? If I need to calculate the T ratio for any angle of a triangle, if I know the sides of that right angle triangle, I can definitely calculate the T ratio. Clear? I hope this is clear to you, and I will be now discussing a question based upon this thing, right? So we'll just discuss a question. So guys, this is the question that we have. We are given with the value of tan A, that is 4 by 3, and we are asked to find all the trigonometric ratios, all the other trigonometric ratios of the angle A. Means tan A is for angle A, then we are to find all the other trigonometric ratios for the angle A. Now guys, here I have written the relationships with the sides of the triangle that I just discussed before, so that it is easier to solve this question for you guys. So guys, in this question, if I take a triangle, right angle triangle, and here this is the angle A, right? Definitely this is the perpendicular, this is the base, and this is the hypotenuse. So guys, now if I have given with the tan A, if I am given with the tan A, now what I need to do is tan A equals to perpendicular by base. Now if I know that tan A equals to perpendicular by base, यहाँ पे मेरे को tan A की वैल्यू given है, that is 4 by 3, right? Means if I keep it equal to perpendicular by base, then guys this is the ratio. So whenever you change the ratio into equality or value of something, you always add a constant with it, right? So I'll be adding k as a constant. So I can write it as perpendicular equals to 4k and base equals to 3k, right? So here perpendicular will be 4k and base will be 3k. And you have to calculate all the other trigonometric ratios, right? Except tan A. Tan A is given, all the other trigonometric ratios are to be calculated here. Now, you can do one thing. Just calculate the hypotenuse of this triangle and apply all the relationships of these trigonometric ratios with the sides of the triangles, right? It is very easy. You can just apply the Pythagorean theorem here. Pythagorean theorem क्या है? Hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. We are not given with the hypotenuse square, means we are not having the hypotenuse, but we are having perpendicular and base, and we can easily calculate the hypotenuse. Now 4k whole square plus 3k square equals to 16k square plus 9k square, that is 25k square, which is hypotenuse square. Now if you have to calculate the hypotenuse, I'll take under root of this and I'll get 5k, right? I won't be taking it to be negative because it is actually the length, and length is never negative, right? Length is never negative, that's why I didn't take it plus minus 5k. I always took it as 5k, right? Now I am having my hypotenuse, I am having my base and the perpendicular. Now just I need to calculate is sine A. Sine A is perpendicular by
by hypotenuse. Now, what do you think you should do? Perpendicular by hypotenuse. Now, what is the value of perpendicular here? This is 4k and hypotenuse is 5k. So, what will be your sin A? That will be 4 by 5. Right? This is very easy. You can do it very easily. Then we have cos A. This is base by hypotenuse. Similarly, we have base equals to 3k by 5k. K will be cancelled and this will be 3 by 5. Right? You can also calculate. Now you can actually calculate all the values yourself. But I'll just calculate it for you for once. And next question, I'll just give it and you'll be doing it yourself. But I won't be giving it now. In the end of the video, I'll be giving you some questions that you need to practice, and then you'll be mastering this chapter. Right? You just need to do all these questions that I'm discussing in the video, and you have to solve all the questions that I have given you actually at the last of the video. Right? So, cosecant A is hypotenuse by perpendicular. So, it just means 5k by 4k, that will be 5 by 4. And I told you that sin A is inverse of cos A, then 5 by 4 is inverse of 4 by 5. Similarly, you don't even need to look at the formulae. You can definitely, if you have these three values, sine, cos and tan, you can actually calculate cosecant, secant and cotangent by yourself. Right? So, if I need to calculate cotangent A, what I'll do now? Cotangent A is inverse of tan A. Tan A is 4 by 3, then it will be 3 by 4. Similarly, if I have to calculate secant A is inverse of cos A. Cos A is 3 by 5 and it will be 5 by 3. So, this is my answer. I'm done with my question. Isn't it very easy? Yes. So, this is just the starting. This is just the basics and you need to memorize this thing. Only this thing. Right? So, now I hope I'm clear with the thing that I need to explain to you. Now, I'll be moving to the next topic that we have. I'm not focusing much on this topic because this is very easy and you can do it by yourself. It just needs the practice. And I'll give you questions in the end and you can practice it well. Right? So, we'll move to the next topic. So, guys, now I have a table behind me. What is this table? What does this mean? Guys, now we are going to study about some trigonometric ratio values that are fixed for some angles, right? Obviously, trigonometric ratios की जो values है, they are fixed for the angles, right? They are fixed. अभी sin अगर मैं किसी angle की ले रही हूँ, तो obviously value तो उसकी same ही आएगी ना? Whatever the triangle angle is, that it depends on that thing, right? It depends upon the angle. Okay. So, one thing that you need to remember is we are going to study about the standard angles. Standard angles कैसे? In sense कि ये जो सारे angles हैं, they all are the multiples of 15, right? Multiples of 15 जो angles होते हैं, they are easy to calculate. They are easy to be found with the calculations of trigonometric ratios. And they are actually simple in calculations. अब most standard angles हैं, they are till 90 degree and they start from 0, right? Otherwise इससे आगे भी जो angles हैं, अब obviously 15 has a multiples more than 90 degree, मतलब 90 degree के आगे भी जो angles हैं, वो भी 15 के multiples हैं, लेकिन उनकी जो values हैं, वो हम इनकी help से find कर सकते हैं, right? We can find the values of the angles greater than 90 degree, which are the multiples of 15, with the help of these values only. Okay, so you just need to memorize the values of these T ratios. अब देखो, trigonometry is a topic which most of the students find difficult to memorize or understand. So guys, this table is very important for you. And guys, I'll make it bit easier for you. आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ sin और cos की values याद करने की जरूरत. sin और tan की, cos की भी नहीं. sin और tan की, साइन की और टेंजेंट की वैल्यूज याद करने की जरूरत है इन सब के एंगल्स की. बाकियों की याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक ट्रिक याद रखना जो मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल डिस्कस अबाउट द साइन. देखो,
साइन ऑफ 0 इज 0. साइन ऑफ 0 डिग्री, दिस इज एंगल. ये जो जितने भी हैं ये सारे एंगल्स हैं. तो साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0. साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, right? Sine of 45 degrees is 1/√2. Then sine of 60 degree is √3/2, and then sine of 90 degrees is 1. So the maximum value of all the t ratios is 1. It cannot be greater than 1, right? I'm not saying for every value because हम कुछ वैल्यूज ऐसी हम देखेंगे जिसके अंदर जैसे ये कोसिकेंट की कुछ वैल्यूज होंगी या जो सीकेंट की कुछ वैल्यूज होंगी, उनके अंदर ऐसा होगा that the values are greater than 1. But if I talk about sine, cos and tangent, sine, cosecant and tangent, इन तीनों में क्या होता है here? नहीं, this is not cosecant, this is cosine. Sine, cosine and tangent. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे the value of the angles is never greater than 1. It is never greater than 1. It is always less than or equal to 1. Okay? So, if I talk about sine, these are the values which you need to memorize very thoroughly. Right? अगर ये गलत हो गई, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा. तो ये आपको याद रखनी है. और guys, tan की वैल्यूज के भी मैं डिस्कस करूंगी. cos की वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. बस ये याद रखो, जो साइन की वैल्यूज हम इधर से उधर इंक्रीज कर रहे हैं, बस इसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन इसको डिक्रीज करना है. सेम वैल्यूज है. मतलब अगर हम साइन की वैल्यूज उल्टा लिखना शुरू कर दें तो वो कॉस की वैल्यूज होगी. अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 है. साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है. सिमिलरली इन दोनों की सेम है. अब इसकी यहाँ पे आ जाएगी एंड हियर इट इज 0. ठीक है, ये आपकी ट्रिक है. अगर इसको इस तरह लिख रहे हो तो बस इसको इस तरह इसमें लिख दो. मतलब साइन की वैल्यूज का उल्टा इनमें लग दो. ठीक है, अगर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आपने लिखा है या लेफ्ट टू राइट आपने लिखा है, तो साइन की वैल्यूज जो होंगी वो कॉस के लिए राइट टू लेफ्ट होंगी. ठीक है, इतना आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लिख रहे हो तो जो इस डायरेक्शन में आप वैल्यू लिखोगे वो कॉस की होंगी. ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू मेमोराइज. आपको कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. tan की वैल्यूज आप कैलकुलेट भी बड़ी आसानी से कर सकते हो और याद रखना इज आई थिंक अ बेटर वे. ठीक है, वो कैसे? अब देखो, साइन बाय कॉस इज tan. अब ये याद रख लो, साइन बाय कॉस, tan, व्हाट इज tan? tan इज साइन बाय कॉस, राइट? अभी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी इनके क्या रिलेशंस होते हैं आपस में. साइन कॉस के कॉस इन सब के टी रेशियोज के आपस में क्या रिलेशंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि tan इक्वल्स टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस. सो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3. Then 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 1. √3/2 divided by 1/2 is √3 and 1 divided by 0 is infinity, या फिर हम इसको बोल देते हैं not defined, because infinity here means not defined. We don't have a fixed value of infinity. Same, we don't have a fixed value of tan 90 degrees. Okay? I hope this is clear and I hope you're getting my point and this is seeming very easy to you. Yes? Alright. So now cosecant 0. अब अगर आपको cosecant की वैल्यूज याद रखनी है, मैंने आपको बोला था cosecant is inverse of sine. Yes, it is true. Cosecant is inverse of sine and you can calculate the values like this only. If sine is 0, then 1/0 is infinity. So cosecant is infinite or not defined at 0 degree. Right? Same here. Then cosecant 30 degree. It is 1/2, then it will be 2. I said that values of t ratios is less than 1 or equal to 1 just in case of these 3 t ratios. Okay? Except tan 2 because √3 is greater than 1. So, in sine and cos, only these two ratios don't have any value which is greater than 1. Their range is between -1 to 1. मतलब 360 degree, from 0 to 360 degree, all the angles or even multiples of 360 degree, all the angles will have the values of sine and cos
इन द रेंज ऑफ -1 to 1, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी एंगल्स की साइन और कॉस की टर्म्स में वो हमेशा इसी रेंज के अंदर लाई करेंगी, इसी के अंदर उनकी वैल्यू आएगी, राइट। सो दैट 1/√2 विल बी √2, बस उसका उल्टा करते जाना है, रेसिप्रोकल करते जाना है आपको, एंड दैट विल बी योर वैल्यूज फॉर देन 1/1 इज 1, तो दिस विल रिमेन्स सेम, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सीकेंट इज इनवर्स ऑफ कोसाइन, कॉस का, जिसको हम जनरली बोल देते हैं कॉस, सो सीकेंट इज इनवर्स ऑफ कोसाइन, सो 1/1 इज 1, दिस विल बी 2/√3, then this will be √2, then this will be 2, and this will be not defined. Now you can also memorize it this way, that if I am saying कि अगर मैं साइन को इससे इस तरफ लेके जा रही हूँ तो कॉस को मैं यहाँ से इससे इस तरफ लेके आऊँ तो वो मेरी वैल्यू कॉस की होगी। सिमिलरली आप रिलेशन में बना सकते हो कॉसिकेंट एंड सीकेंट के बीच में। अगर कॉसिकेंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उसकी जो वैल्यूज राइट टू लेफ्ट होंगी वो साइन के लिए होंगी, सीकेंट के लिए होंगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट इट इज इजियर टू मेमोराइज इट एज इनवर्स ऑफ कॉस एंड साइन, ओके। देन दिस इज नॉट tan, sorry, this is cot. Now cotangent. Cotangent is inverse of tan. Now if we talk about tan, 1/0 is infinity. Here it is not defined for 0 degree. Okay. Then it will be √3, 1/√3 and 0. How 0? 1/infinity is 0. 1/infinity equals to 0. So I hope this table is clear to everybody, and this is very important for you to memorize. You just need to memorize two values, that is for sine and for tan. Others you can, अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आया है, एक ट्रिक समझ में आई है, तो आप डेफिनेटली ये आप खुद से बना सकते हो, खुद से मतलब आपको याद आ जाएंगी उस टाइम पे वैल्यूज। अब अगर आपका एग्जाम है या कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक रफ शीट पे या अपनी साइड पे कहीं ये टेबल लिख लो, आपको आराम से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन का हम 0 से 1 पे जाते हैं, कॉस के लिए क्या आएंगे, हम 1 से 0 आएंगे और वैल्यूज साइन वाली ही होंगी, बस उल्टी डायरेक्शन में चलना है। सिमिलरली टैन के लिए क्या करेंगे, साइन बाय कॉस, ठीक है। साइन बाय कॉस डिवाइड करो, वो आपकी टैन की वैल्यूज आ जाएंगी। अब कोसिकेंट क्या है, 1/sin, इनवर्स ऑफ साइन मीन्स 1/sin। सीकेंट क्या है, 1/cos, इनवर्स ऑफ कॉस। कोटेंजेंट क्या है, 1/tan, इनवर्स ऑफ tan, ठीक है। आई होप these values are clear to you guys. This is very important and you need to memorize it, okay. So I'm moving forward, I'm moving to some other topics and the questions related to this. Guys, I have a question here for you regarding the table that we did. In triangle ABC, right angled at B, means I have a triangle ABC, right angle triangle, which is right angled at B. Right, AB is 5 centimeters, means this AB is 5 centimeters, and angle ACB means the angle at C is 30 degrees. Okay, then determine the lengths of BC and AC. So means suppose this is the perpendicular and I have to calculate the base and hypotenuse. Right, now if I need to calculate this thing, देखो अगर तो आपको यहाँ पे एंगल दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करो, आप इसको ऐसे बना सकते हो, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू डिटरमाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर कुछ अभी मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगी एंड आई विल बी चेंजिंग दी बेस एंड परपेंडिकुलर। ये देखो, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो ये हो गया एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया AB, दिस इज 5 centimeters, and now this is perpendicular and this is hypotenuse. If I am given with angle this as ACB is 30 degree, now I have to calculate this BC and AB. Means what do I have to calculate? क्या मुझे कैलकुलेट करना है? I have to calculate the perpendicular and the hypotenuse. अब देखो मेरे को बेस गिवन है और मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे कॉस लगा दूं। याद है आपको कॉस C एंगल है, इसलिए मैं ले लू C was equals to base by hypotenuse. बेस की वैल्यू मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है, और cos C क्या है, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
5 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो cos 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल में बताई है, क्या है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 5 बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस विल बी 5 into 2 by √3, दैट विल बी 10 by √3। दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सेंटीमीटर। नाउ अब मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर ली, दिस इज माय AC, ठीक है। हाफ वर्क ऑफ द क्वेश्चन इज डन। नाउ अभी मुझे सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट BC। BC के लिए क्या करूंगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब मैं अगर tan का फॉर्मूला लगा दूं, डेफिनेटली मुझे ये मिल जाएंगे। और अगर नहीं भी लगाना है ना, सिमिलरली आप सिंपली क्या कर सकते हो, जस्ट अप्लाई दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट और आपको वो मिल जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी कर सकते हो, tan की वैल्यू से भी कर सकते हो। मैं दोनों से करके दिखाती हूँ। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाना है तो कैसे होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने अभी कैलकुलेट किया, 10 by √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है प्लस 5 का स्क्वायर। दिस विल बी 100 by 3 minus 25 equals to p square. This will be 75 minus 100 by 3. It will be 25 by 3. This is perpendicular square. Under root of perpendicular will be 25 by 3 का under root, and this will be perpendicular, that will be equal to 5 by 3 centimeters. ठीक है, ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया। एक तो ये वे, दूसरा वे आप tan से कैलकुलेट करो। अगर हम tan से कैलकुलेट करते हैं, tan C इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C क्या है, 30 डिग्री है, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 दैट इज 1 by √3 एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 by √3। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर भी 5 by √3 सेंटीमीटर। सो यू कैन सी माय आंसर इज सेम फ्रॉम बोथ द वेज। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। अभी मैं इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस लूंगी विद द सेम टॉपिक, ताकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछी जाती है दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो वी मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। Now guys, I have the question जिसके अंदर we are given with the triangle PQR which is right angled at Q. Right? I am just drawing a triangle, right angle triangle which is like this. Right? Now PQ is 3 centimeter and PR means this is 6 centimeters. Okay? Now you have to calculate angle QPR means this one, I name it as angle A, and angle PRQ. PRQ. This is B, right? So let this angle be A and this angle be B, right? So it will be easier for us to recognize. Now guys, अब देखो आपको दो साइड्स गिवन है, आपके पास तीसरी नहीं है और आपने ये दो एंगल्स फाइंड करने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, अभी इस बी एंगल को भूल जाओ, अभी सिर्फ ए पे कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फाइंड द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज दिस। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हो, थ्रू पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस दिस इज RQ स्क्वायर। राइट, मैं डायरेक्टली मैंने वैल्यूज पुट की है। आई होप यू नो कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे लगानी है। ठीक है, 36 माइनस 9 इज 20। बोलो कितना होता है, 27 अंडर रूट इज इक्वल्स टू RQ। आप इसको इक्वल्स टू 3√3 भी लिख सकते हैं। राइट, 27 का अंडर रूट होता है 3√3। ओके, और अब देखो आपके पास तीनों साइड्स आ गई है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंगल ए, आपको एंगल ए फाइंड करना है। आप कोई भी रेशियो लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ए, ठीक है, साइन ए तो इसको फिर इसकी यूज ही नहीं था, अगर हम साइन ए निकालते हैं तो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है विच इज 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिस इज 6 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल विच हैव द वैल्यू 1/2 फॉर साइन, दैट इज 30 डिग्रीज। राइट, सो एंगल ए इज 30 डिग्री। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो इक्वल्स टू साइन 30। राइट, देयरफॉर एंगल ए इज 30 डिग्री।
टर्न करके ऐसे बना लिया ताकि मेरा एंगल बी ऊपर आ जाए और मुझे कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ मार्क अभी भी आपको वैसे करना 6 सेंटीमीटर। अब ये हमने क्यों कैलकुलेट कर लिया था 3√3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको नेमिंग का ध्यान रखना होगा। नाउ अब आप साइन ही लगाओ, अगर साइन बी कोई भी एक रेशियो लगा लो, डजेंट मैटर आप कौन सी रेशियो लगा रहे हो, बस ये ध्यान रखना कि आप जो भी रेशियो लगा रहे हो आपको उसकी वैल्यू, जो स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यूज है वो सारी याद हो, वो वाली वैल्यू रेशियो लगाना, क्योंकि दैट विल बी इजियर और उसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यू वोंट बी लूजिंग योर मार्क्स। ठीक है, सो साइन बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सेम परपेंडिकुलर यहाँ पे होगी 3√3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा दिस विल बी 2, दिस विल बी √3/2 और ये अगर आप ध्यान से देखो दिस विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिख सकते डेफिनेटली आप, दिस विल बी साइन 60 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक तो ये रीजन देखो, आपने जब ए फाइंड कर लिया ना, आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं। जब एक तो आप ये लगा सकते हो साइन ए लगा के उसके बाद दोबारा साइन बी लगाओ। दूसरी चीज आप क्या लगा सकते हो, देखो दिस इज अ वेरी जेन्युइन या आप कह सकते हो वेरी सिंपल ट्रिक जो आप लगा सकते हो कि ऑल द एंगल्स, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब मेरे को एंगल ए पता चल गया है 90 डिग्री ये है, तो दूसरा ट्रायंगल 30 प्लस 90 इज 120, 180 माइनस 120 इज 60। तो सिंपली आप वो भी लगा सकते हो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इक्वल टू 180 डिग्रीज और उससे आप थर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हो, या फिर आप सीधा ही टी रेशियो लगा के कर सकते हो। राइट, सो दिस इज इजी। आई होप यू आर मतलब यू अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली एंड इट सीम्स टू बी इजी फॉर यू। अगर कोई डाउट है यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। आई हैव दीस टू क्वेश्चंस हियर। अब देखो जो हमने पिछले स्टेटमेंट क्वेश्चंस किए थे that were regarding finding the angles or the sides of the triangle using the T ratio. Now these questions are just to solve the equations that we are given with. अब देखो first sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री plus sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। वैसे तो इसके और भी मेथड्स हैं इन ट्रिग्नोमेट्री ओनली, लेकिन अभी आपको मैंने सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो सिंपली आप अपनी वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे एंड सॉल्व इट। तो साइन 60 इज √3/2। देखो आपको वैल्यूज टिप्स भी होनी चाहिए तभी ये सॉल्व कर सकते हो ऐसे। एंड दिस विल बी दिस इज ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 इंटू कॉस 60 इज 1/2। सिंपली आप कर सकते हो, दिस विल बी 3/4 प्लस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब cos 45 इज 1/2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री। अब देखो cos 30 कितना होता है √3/2, तो secant 30 कितना होगा 2/√3 प्लस cosecant 30। अब sin 30 जो होता है दैट इज 1/2, तो cosecant 30 इज 2। ठीक है, अब इसका जो पहले नीचे एलसीएम लो, दिस विल बी 2, 1/2 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 जो था वो यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे लैंग्वेज से भी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 इंटू 2 प्लस 2√3 इंटू √3 ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4√3, या आप कर सकते हो √3 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आ गया 1 प्लस √3, और इसको अगर आप रैशनलाइज करना चाहो तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करोगे, सिंपली इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, दिस विल बी √3 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, 1 माइनस 3 इज -2, सो √3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2 दैट विल बी 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 8। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज आए, कि आपकी स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज आए। जब इवेल्युएशन के क्वेश्चंस आते हैं आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट द क्वेश्चंस, और आप कह सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड है आपकी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। So guys, the next topic that we have is trigonometric identities for the complementary angles.
First of all, what do you mean by the complementary angles? Guys, the complementary angle is actually equal, the angle equal to 90 degree. ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री. ओके, सो एनी एंगल विच इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री means suppose A is my angle and I am writing sin A equals to 90 degree minus A, right? Similarly cos A, yeah, sin 90 minus A, cos 90 minus A, then tan 90 minus A, cosecant 90 minus A, secant 90 minus A, and cotangent 90 minus A. तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक आंसर्स होते हैं, या आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का के बीच में टी रेशोज का क्या रिलेशन होता है, क्या उनका एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है. सो साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज साइन ए, कॉट tan 90 माइनस ए इज कॉट ए. अब देखो कॉट 90 माइनस ए इज tan ए, देन cosecant 90 minus A is secant A and secant 90 minus A is cosecant A. ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. दिस इज वेरी इजी. अभी इसी के साथ ही अगर आपको मैं क्वेश्चंस देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यहीं पे क्वेश्चंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इवेल्युएट tan 65 degrees divided by cot 25 degrees, right? अब देखो ये दोनों जो हैं दे आर नॉट द स्टैंडर्ड एंगल जिसकी आपको वैल्यूज याद हो, और या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कहीं से या सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी करके आप उससे सॉल्व कर सको, ये वो वैल्यूज नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 15. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का हम अगर कॉन्सेप्ट यूज करें तो tan 65 डिवाइडेड बाय cot 90 सॉरी tan 90 माइनस 25. ठीक है, जब भी हम 90 माइनस 25 करेंगे हम टी रेशो भी चेंज कर देंगे, लेकिन हम कैलकुलेट किस अकॉर्डिंग टी रेशो चेंज करेंगे, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसे ये क्या बन जाएगा tan 65 डिवाइडेड बाय tan 65. अब देखो 90 माइनस 25 क्या होता है, दैट इज 65. यस, राइट. अभी अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे भी कर सकते हो. cot A क्या होता है, tan ऑफ 90 माइनस A. अगर मैं बोलूं cot 25 है तो वो क्या होगा, tan ऑफ 90 माइनस 25, दैट विल बी tan 65. अब tan 65 by tan 65 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1. सो दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. नाउ जब मैंने टी रेशियो सेम कर ली, दैट इज इजी टू कैलकुलेट. अगर मेरे को वैल्यूज नहीं पता है, राइट, वो सिंपली कैंसिल हो गया, राइट. अभी कुछ और अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगी इसके क्वेश्चंस, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव sin 3a इज इक्वल्स टू cos A minus 26 degree. तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट? अब देखो इक्वालिटी का साइन आ गया अब यहाँ पे. नाउ इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, अब इसके बाद देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉज है. अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे एंगल प्रॉपर गिवन ही नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ ए. अब ए का मेरे को क्या पता क्या वैल्यू है, ए इज काइंड ऑफ वेरिएबल एंगल. ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर यहाँ पे कॉज है, मुझे यहाँ पे भी कॉज बनाना है, तो आप कह सकते हो मैं इस साइन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ. अब साइन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो वो कॉस की टर्म्स में आएगा. अगर मैं बोलूँ ये वाले साइन का मैं कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो वो कॉस में आएगा, मीन्स 90 cos 90 माइनस 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26. ठीक है, अब देखो दोनों साइड पे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइड पे मैंने क्या किया, मैंने इनके जो टी रेशियोज है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मैंने वो चेंज कर दिया, मतलब वो मैंने सेम कर दिया. सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये sin 3a है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे sin 90 माइनस a माइनस 26. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप साइन बना सकते हैं तो भी ये सेम हो जाता है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनके जो एंगल्स हैं मैं उनको कंपेयर कर सकती हूँ, इक्वल्स टू a माइनस 26.
तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 इक्वल्स टू 4a एंड दिस विल बी 116 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू a। तो आप अगर इसको कैलकुलेट भी करते हो, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 5a 58 and this will be 29. So a will be 29 degree. So I hope this is clear to you that how can you calculate the angles using complements if you are not given with the standard angles or the value of angles, right? So I hope this is clear to you. You should note it down. So guys, I have a question here. This is a very famous question जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी ये काफी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई हैव गिवन विद द 3 एंगल्स A, B and C which are the interior angles of a triangle। मतलब एक ही एंगल के तीनों एंगल्स हैं, एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं और मुझे ये रिलेशनशिप उन्होंने दिया है एंड आई हैव टू प्रूव इट दैट दिस इज राइट। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब अगर कोई ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है ना, यहाँ पे देखो जब आप ये थ्योरेटिकल इन द सेंस कि आपको वेरिएबल्स दिए हैं और आपको प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अभी देखो आपके पास आप फंस जाते हैं क्योंकि आपके पास ना तो कोई वैल्यूज हैं जो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके पुट कर सकते हो या आप सॉल्व कर सकते हो, ना आपको किसी वैल्यू याद रखने की जरूरत है कि ये इसकी वैल्यू थी, अच्छा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, देखो कोई भी एक साइड लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दैट इज साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल बी साइन, अगर मैं साइन का कॉम्प्लीमेंट लू यूजिंग दिस ओनली, तो दिस विल बी कॉस 90 माइनस b प्लस सी बाय 2, राइट। ये मेरा एंगल हो जाएगा। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूं तो ये क्या होगा, कॉस 180 माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब अगर आप ध्यान से कुछ देखो, यहाँ पे अगर ये चीज ऐसी रहने दो, ठीक है, 180 माइनस बी प्लस सी। अब इससे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि वी ऑलवेज से दैट, अभी हम उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी आर द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो अगर यहाँ पे मेरे को गिवन है 180 माइनस बी प्लस सी, मतलब मैंने ये दोनों एंगल्स मैंने इधर को ट्रांसपोज कर दिया, इक्वल टू क्या बचा, दैट इज ए। तो मेरा आंसर आ गया, दिस विल बी cos a by 2। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है इसे। सो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। So guys, here I have some trigonometric identities. अभी हमने बात की trigonometric identities for complement angles। वो थे सिर्फ वो एंगल्स के लिए जो कि कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स जो 90 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बता रहे हैं। लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग द आइडेंटिटीज विच आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंगल्स, राइट। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर a, for example I am taking any angle a plus cos square a equals to 1, right। अगर एंगल सेम है एंड साइन एंड कॉस आर हैविंग स्क्वायर्स एंड दे आर एडिंग अप, देन देयर सम विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंगल्स। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस दोनों जो हैं, मैंने आपको बोला था ये दोनों की वैल्यूज नेवर एक्सीड 1, दे आर ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, राइट। अब देखो अगर कॉस है और साइन है, अब इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है और उनका सम है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। वो क्यों? एग्जाम्पल भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, राइट, साइन ए इज 1/2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1। और भी किसी क्वेश्चन किसी चीज के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए 0 ले रहे हैं तो साइन 0 इज 0, उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। cos 0 is 1, 1 का स्क्वायर इज 1, देन आंसर इज 1, ठीक है। तो ये एक्चुअली में आइडेंटिटीज कैन बी प्रूव्ड और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। सो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। देन वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant square a। This is the value that we second identity that we have.
अगर आप 1 में कोई वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए ऐड करते हो दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ secant स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी वाइस वर्सा भी यूज हो सकती है, secant स्क्वायर ए की वैल्यू ऐसे यूज होती है। या अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 1, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो secant स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब ये सारे एंगल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। अब देखो secant 0 क्या होता है? secant 0 इज इनवर्स ऑफ cos 0। cos 0 इज 1, सॉरी हाँ cos 0 इज 1, तो 1 by 1 इज 1, तो secant स्क्वायर a मतलब secant स्क्वायर 1 का होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 0। अब देखो tan स्क्वायर इज sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, 0 by 1, तो 0 का स्क्वायर होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू 1। और भी आप कोई वैल्यू लो तो आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी दैट वी हैव, एंड वी हैव ओनली 3 आइडेंटिटीज विद अस। देन वी हैव cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cosecant स्क्वायर a। यहाँ पे भी हम अगर ये कोई भी एंगल ले लें उसके लिए ये वैल्यूज सेम मतलब यही ये एप्लीकेबल होगी। बस द रिक्वायरमेंट इज बोथ द एंगल्स शुड बी सेम, मतलब यहाँ पे भी a और यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट। सो दीज 3 आर द मेजर आइडेंटिटीज दैट यू नीड टू मेमोराइज एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये आपको मतलब रट लो, ये घोल के पी जाओ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now guys, I have a question regarding these identities. मैंने ये तीनों लिख दी है so that it's helpful for you to solve this question. अब we have to prove. I have a question here regarding these identities only. So I have to prove these two sides to be equal, right? How can I do this? देखो, first of all though, I'll take the left hand side, that is cosecant theta minus cot theta whole square, right? अभी पहले मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे ऐसी रेशियोज आ रही थी ना, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन इजी बनाना है ना, देखो आप कर ऐसे भी सकते हो, आप इसको आइडेंटिटीज लगा के कर सकते हो, ये दोनों आइडेंटिटीज लगा के, बट इट इज इजियर टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉज एंड देन अप्लाई दिस आइडेंटिटी बिकॉज इट इज इजियर टू अप्लाई, ठीक है। अब आपको जब कन्वर्ट करना होता है देन tan इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी नोट कर लो। cosecant थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, secant theta equals to 1 by cos theta and cotangent theta equals to cos theta by sin theta, और इसका आप लिख सकते हो 1 by tan theta, ठीक है। ये आप याद रख लो, दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अभी यहाँ पे मुझे पहले इनको cos sin में कन्वर्ट करना है, दिस विल बी 1 by sin theta minus cos theta by sin theta whole square, राइट। सिंपली क्या करो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1, इसको आप कन्वर्ट करो अगर तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी लगा सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये माइनस के साथ ये वाला माइनस कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सो आई होप दिस इज इजी एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, और उसके बाद मैं कुछ स्नैपशॉट्स इसकी वीडियो के एंड में डाल दूंगी ताकि आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो, ये मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो डेफिनेटली आई बी टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। इसका अगर मैं एलसीएम लूं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, इसका एलसीएम लूं तो वो क्या बनेगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या बनेगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को ओपन कर लिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, दिस विल बी cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए 1 प्लस साइन, इसको भी मैं ऐसे रख दे रही हूँ। अब देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
divided by cos A plus sin A, 1 plus sin A into 1 plus sin A. ठीक है, this is the question अभी तक. This will be 2. So I have reached this point. यहाँ पे मैंने sin square A plus cos square A को 1 पुट कर दिया. अब this will be 2 plus 2 sin A divided by cos A into 1 plus sin A. अभी मैंने नीचे वाला ब्रैकेट क्यों नहीं खोला वो आपको अभी रीजन पता लगेगा. ऊपर से मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया दैट विल बी 1 प्लस साइन ए और नीचे है cos इंटू 1 प्लस cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ये हो जाएगा कैंसिल. दिस विल बी 2 बाय cos ए एंड यू नो 1 बाय cos ए इज secant ए. So 2 secant a which is my right hand side and my question is solved. I hope this is clear to you. ये आपको समझ में आया सब कुछ. So guys, this was the whole chapter trigonometry. मैंने सारे टॉपिक्स इसके आपको ब्रीफ में डिस्कस कर दिए हैं. Now you just need to do is the practice. और अभी मैं इसके बाद कुछ स्नैपशॉट्स में ऐड कर दूंगी ताकि आप वो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको. उसके पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. राइट. और गाइज अगर आपको और कुछ भी चाहिए, कोई आपको वीडियो में हेल्प चाहिए, कोई डाउट क्लियर करना है, आप जस्ट कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कहीं पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आइदर इन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर. सो आई विल मीट यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो. एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट एज मच एज you can and subscribe the channel and hit the bell icon so you get notified every time I post something. So I'll be meeting you very soon. Till then, take care, bye bye and stay tuned.